بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں، میرپور خاص شہر میں ہیسکو کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ 10 گھنٹے کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ بریک ڈاؤن نے بھی معاملات زندگی بری طرح متاثر کر دیے ہیں، جس سے کاروبار مفلوج ہو گئے اور گھروں میں بجلی نہ ہونے کے باعث پینے کے پانی کی سپلائی بھی متاثر ہوئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ طویل بریک ڈاؤن کے باعث واٹر سپلائی اسکیموں پر پانی کے حصول کے لیے لائنوں میں لگ کر انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ وابڈا کے بڑے بریک ڈاؤن سے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہریوں نے وفاقی وزیر پانی اور بجلی اور ہیسکو چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ میرپور خاص شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں فوری کمی کی جائے تاکہ عوام کی مشکلات ختم ہو سکیں۔ پنوں کے علم میں بڑھتی قیمتوں سے روزگار متاثر ہونے لگا۔ مہنگائی اور سیمنٹ کی قیمتوں میں اضافے کے باعث بلڈرز کا کام بند ہونے سے دہاڑی دار مزدور بے روزگار ہو گئے، جنہوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سندھ سے مزدور کارڈ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بچوں کے لیے راشن خریدنے میں آسانی ہو سکے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ اسرار احمد بھٹی سے۔ اسرار بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ملک میں کافی عرصے سے مہنگائی کا راج ہے، جس کی وجہ سے بلڈروں کا کام بند ہو چکا ہے۔ سیمنٹ، بجرا اور ایلسن ہے، ان کا ریٹ ڈبل ہو چکا ہے۔ اسی حوالے سے پنو آٹل میں بھی بلڈرز کا کام بند ہونے کی وجہ سے مزدور اور دیہڑی دار بالکل بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک مزدور موجود ہے، ان سے معلوم کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی آپ بتائیں۔ ہاں جی، یہ سچی بات ہے کہ ہمارے پنو آکل میں بھی بڑی مہنگائی ہے، سارے ملک میں مہنگائی ہو چکی ہے، کیونکہ ہم پنو آکل کے مزدور یہاں دیہڑی دار بہت پریشان ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر بلڈرز کا کام بند ہو گیا ہے۔ سیمنٹ، بجرا، ہیلسن سارے مہنگے ہو چکے ہیں، کوئی بھی کام نہیں کروا رہا۔ ہم یہاں پر مزدور کہاں سے آ کر یہاں پر جمع ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پر گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، مگر واپس چلے جاتے ہیں، مزدوری نہیں ملتی، ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھی کارڈ بنا کر دیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کی روٹی روزی آرام سے خرید کر اپنا گزارا کر سکیں۔ اپنے مزدور کی باتیں سنیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم مختلف علاقوں سے ایک جگہ پر آ کر مخصوص جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہماری مزدوری یا دیہڑی نہیں لگتی۔ اگر لگتی بھی ہے تو وہ 500 سے 600 روپے ملتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا گزارا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل کرتے ہیں کہ جتنا بھی جلدی ہو سکے محترمہ ساتھ جو ہے ہیلتھ کارڈ اور کسان کارڈ کی طرح مزدور کارڈ بھی بنا کر جاری کیا جائے تاکہ مزدوروں کا روٹی روزی اور گھر کا خرچ آسانی سے چلا جا سکے۔ جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چشتیہ میں مہنگائی نے پہلے ہی غریب عوام کی کمر توڑ رکھی ہے۔ اب ادویات کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ عوام کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ عام استعمال کی دوائیں بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ محمد کلیم افضل چودھری کی اس رپورٹ میں۔ کے بعد ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، عوام شدید مشکلات کا شکار۔ مہنگائی کی مسلسل لہر نے جہاں عام شہری کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، وہیں ادویات کی بڑھتی قیمتوں نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ روزمرہ استعمال کی ضروریات ادویات، جن میں بخار، بلڈ پریشر، شوگر، دل اور بچوں کی دوائیں شامل ہیں، عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی آٹا، بجلی، گیس اور پٹرول کی قیمتوں نے کمر توڑ رکھی ہے۔ کئی مریض مجبوری کے عالم میں یا تو ادویات کم استعمال کر رہے ہیں یا علاج ادھورا چھوڑنے پر مجبور ہے، جو ان کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ سر میڈیسن کے ریٹ دن بدن بڑھ رہے ہیں، مہنگائی پہلے بہت زیادہ تھی اور اب میڈیسن لینا بھی مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے، اور ہفتہ پہلے کچھ اور ریٹ تھے، بہت کم تھے، اب دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں اور ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ان کے لیے میڈیسن لینا بہت مشکل ہو رہی ہے، اور میری اپیل ہے حکومت پنجاب سے کہ میڈیسن کے ریٹ کم کرے تاکہ غریب عوام بھی آسانی سے میڈیسن لے سکے۔ دوسری جانب میڈیکل اسٹور مالکان کا کہنا ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کمپنی کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کے مطابق اکثر دوائیوں کی نئی قیمتوں کے ساتھ آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ عوامی حلقوں اور سماجی تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی قیمت میں فوری کمی کی جائے اور سخت مانیٹرنگ کے ذریعے ناجائز منافع خوری کا خاتمہ کیا جائے۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں کم سے کم علاج معالجے کو سستا بنایا جائے تاکہ عام آدمی بھی بنیادی صحت کی سہولتوں سے محروم نہ ہو سکے۔ کینو ٹیم کے ساتھ محمد کلیم افضل چودھری، 5 نیوز، چشتیاں۔
मीरपुर माथुले के निजी पावर प्लांट एंग्रो पावर कादरपुर इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान कई सालों से जारी इख्तलाफात खुशगवार माहौल में ख़त्म हो गए हैं, जिसके बाद पैदावार में वाज़ेह बेहतरी और तामीर और तरक्की के नए मराहिल का आगाज़ हुआ है। मुफाहमत के बाद मुलाजमीन ने मुकामी और आला अफसरान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर करके भाईचारे और यकजहती का इजहार किया। एडमिनिस्ट्रेटर शाहजमान खान की कोशिशों से इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान एतमाद की फिजा बहाल हो गई है। एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अदील कमर, जनरल मैनेजर इमरान वजीर सुमरो और एडमिनिस्ट्रेटर शाहजमान खान को अजरक और सिंधी टोपी पेश की गई। इस मौके पर अफसरान और मुलाजमीन ने इस अज़्म का इयादा किया कि पुरअमन माहौल में ही इदारे की तरक्की, बेहतर पैदावार और मुलाजमीन की फलाह मुमकिन है। दादू में गुज़िश्ता रोज़ मुसल्लम मुल्ज़िमान की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकार अब्दुल हफीज़, इरफान और कांस्टेबल इमामुद्दीन की नमाज जनाजा मेहर के मरकजी ईदगाह में अदा कर दी गई। जनाजा DIG हैदराबाद तारिक धुरेजो, डिप्टी कमिश्नर दादू और SSP दादू समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद एहलकारों को सियासी एजाज़ के साथ तदफीन की गई और पुलिस की जानिब से इन्हें सलामी भी पेश की गई। शोहदा को उनके आबाई गाँव में सुपुर्द खाक किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, गुजरांवाला में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना तौर पर 5 मुकाबलों के दौरान कार्रवाइयां की, जिसमें संगीन वारदातों में मुलविस 3 डाकू हलाक और 4 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्ज़िमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। CPO डॉक्टर सरदार क़यास गुल खान ने फौरी नोटिस लेते हुए मुतलका SP से रिपोर्ट तलब कर ली और फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए DSPs की निगरानी में खुसूसी पुलिस टीमें तश्कील देकर शहर भर में नाकाबंदी जारी कर दी है। वड़ाइच और ततले आली के इलाकों में 2 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए, जबकि दीगर मुल्ज़िमान पुलिस से मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। शेखोपुरा की तहसील मुरीदके के इलाके रावी रेयान में रस्म हिना की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से मना करने पर 16 साला नौजवान हम्माद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नूरी चौक के करीब तकरीब के दौरान 6 मुसल्लह अफराद अंधाधुंध हवाई फायरिंग कर रहे थे, जिन्हें मना करने पर मुल्जिमान तैश में आ गए और हम्माद को गोली मार दी, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। सदर मुरीद के पुलिस ने मकतूल की लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। मकतूल के वालिद शकील अहमद की मुतैयत में गुलफाम, अशफाक, जुनेद, सज्जाद और 2 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान पुलिस राना यूनिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में CTO फरहान असलम की ज़ेर सदारत ट्रैफिक इंतजाम से मुतल्लिक़ अहम मीटिंग हुई, जिसमें सर्कल सेक्टर इंचार्ज, DTO अफसरान और दफ्तरी स्टाफ ने शिरकत की। CTO ने अफसरान को हिदायत की कि शहरियों के साथ खुश अखलाकी और सब्र तहम्मुल से पेश आएँ। पहले सलाम फिर कलाम के उसूल को यकीनी बनाया जाए और शहरियों की गलतियों की निशानदही शाइस्तगी से की जाए। उन्होंने कहा कि ख़वातीन, बुजुर्गों, बच्चों और माजूरों के साथ नारवा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है और ट्रैफिक की रवानी की आसानी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शेखोपुरा में थाना बकरी पुलिस के SHO वाजिद अब्बास की क़यादत में स्पेशल टास्क ने रजोका डकैत गैंग के 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये गैंग शहरियों से असलहे के जोर पर नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीनने के साथ डकैती और नकबजनी की दर्जनों वारदातों में मतलूब था। कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िमान से लाखों रुपए मालियत का मशरूका सामान बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। सियालकोट में वेस्ट मैनेजमेंट, पैरा फोर्स और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दुकानों के बाहर कचरा फेंकने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। कार्रवाई के दौरान मुतादिद दुकानें सील की गई हैं और जिला इंतजामिया की तरफ से ऐलानात किए जा रहे हैं कि दुकानों के बाहर कचरा दान ना रखने वाली दुकानों को भी सील किया जाएगा। पैरा फोर्स और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तजावुजात के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने कहा, सुतरा पंजाब विजन पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने चक नंबर 5 का दौरा करके टफ टाइल और नाले की जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने तामीर में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की क्वालिटी चेक की। नाले की तामीर में नाकिस ईंटों के इस्तेमाल पर डिप्टी कमिश्नर ने सख्त नोटिस लेते हुए मुतलका अफसर की सरजनिश की और ठेकेदार को फौरी तौर पर तामीराती काम बंद करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि तरक्याती मनसूबों में नाकिस मटीरियल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुतलका अफसरान को हिदायत की कि जारी मनसूबों का रोजाना की बुनियाद पर मुआयना करें और शहरी तरक्याती स्कीमों में मेयार पर कोई समझौता ना होने दें। जिला इंतजामिया ने रमजान मुबारक से पहले जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
डिप्टी कमिश्नर पेशावर कैप्टन रिटायर्ड सनाउल्लाह खान ने बताया कि ज़खीरा अंदोजी और कानूनी दस्तावेजात ना होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। डिप्टी कमिश्नर पेशावर कैप्टन रिटायर्ड सनाउल्लाह खान के मुताबिक सरदार घड़ी और बधाई में 5 गोदाम सील किए गए, जबकि 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला इंतजामिया ने आवाम को सरकारी निरखों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाने के इक़दामात भी जारी रखने का ऐलान किया। लाहौर में रमजान से कबल फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने पंजाब भर में 3 दिनों में 3,63,000 से जायद छापे किए और ओवर चार्जिंग में मुलव्विस 21,000 से जायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। 38 मुकदमा दर्ज करके 437 अफराद को गिरफ्तार करके 1,09,02,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। आटे की नोटिफाइड कीमतों पर फरहमी के लिए 20,300 से जायद मुकम्मत चेक किए गए। 1,100 से जायद आटा गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 31 गिरफ्तार और 6,20,000 रुपए जुर्माना किया गया। गोश्त में ओवर चार्जिंग पर 1,480 कसाबों के खिलाफ 5 मुकदमात, 31 गिरफ्तारियां और 7,72,000 रुपए जुर्माना किया गया। खानेवाल में फूड अथॉरिटी और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई में मुलव्विस बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया है। 55 मन मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली गई हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक रेकी के दौरान पंजाब फूड अथॉरिटी और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक घर से मुर्दा मुर्गियों की बड़ी खेप पकड़ ली है। कार्रवाई एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस आमिर इफ्तिखार और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस ताहिर सईद की सरबराही में की गई। मुलजिम ने अपने घर में मुर्दा मुर्गियों की खुफिया स्टोरेज की हुई थी। मुर्दा मुर्गियों मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स, होटलों और शवारमा पॉइंट्स पर सप्लाई की जानी थी। फूड सेफ्टी टीम ने मुज़र सेहत मुर्गियां मौके पर तलब कर दी और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मलिकवाल में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के सेहत दोस्त विजन और डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के अहकामात पर डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन अदील हैदर की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों का क्रैक डाउन जारी है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की निगरानी में फूड सेफ्टी टीम ने मलिकवाल में बार मूसा रोड पर दूध के 2 मिल्क कलेक्शन सेंटर्स को अचानक चेक किया, जहाँ दूध मिलावटी और मुज़र सेहत पाया गया। कार्रवाई के दौरान बार मूसा में 1,000 लीटर दूध ज़ाया किया गया। याद रहे कि दोनों मिल्क कलेक्शन सेंटर्स को इससे कबल बेहतरी की हिदायत और इस्लाही नोटिस जारी किए गए थे और जुर्माना भी किया गया था। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी के तर्जुमान के मुताबिक गिलगिश्त कॉलोनी में वाकई एक मारूफ रेस्टोरेंट का मुआयना किया गया, जहां पानी का सैंपल फेल होने पर उसे आर्जी और इस्लाही बुनियादों पर बंद कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक पानी के सैंपल में आर्सेनिक की मौजूदगी साबित हुई है, जिसके बाद रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। इसके अलावा डेयरी मसनूआत, गोश्त और सब्जियों को एक ही जगह नामुनासिब स्टोरेज में रखा गया था। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि खाने पीने की अशिया के मयार में बेहतरी के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के अहकामात पर फूड सेफ्टी टीमों ने ननकाना साहब के इलाके मुरखंडा में कार्रवाई की, जिसमें सुर्ख मिर्च के सैंपल फेल होने पर मुतलका यूनिट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। फूड अथॉरिटी के मुताबिक तल्फ की गई सुर्ख मिर्चों में मसनूई रंग और ममनुआ अज्जा की मिलावट पाई गई। मुआयने के दौरान मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं थे, जबकि यूनिट में सफाई के नाकिस इंतजामात और हशरात से बहुतात भी देखी गई, जो सेहत के लिए संगीन खतरा है। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यूनिट को बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सेहत बख्श खुराक की फरहमी के लिए सूबे भर में कार्रवाइयां जारी हैं। खैरपुर शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीक के मौके पर AI इंडस वीक का शानदार इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांगड़ से। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी, आपने दुरुस्त कहा कि आने वाला जो दौर है मुस्तबिल है वो मशीनों का है, रोबोटिक मशीनें का दौर है। इसलिए हुकूमत सिंध की जानिब से AI से मुतल्लिक हफ्ता मनाया जा रहा है। इस मसले की यूनिवर्सिटी में मौजूद हो, जहाँ पर एक एक्सपो का AI से मुतल्लिक तमाम किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमीना राजपर, उनसे भी पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। डायरेक्टर हूँ कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। हम लोगों के पास यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट बनाया जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव से जो उन्होंने AI के प्रमोशन के लिए किया हुआ है, तो हमने इस वीक को
आज से 10 तारीख से इंडस AI वीक 20,000 से इंटीग्रेट किया है। कार लाते हुए एक ई जर्नल बनाया है जिसमें ऑटोमेटिकली फेसबुक से और डिफरेंट सोशल मीडिया से वो खबरें एक्सट्रैक्ट करेगा जो हमारी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट इवेंट्स से मुतालिक होगी और ऑटोमेटिकली उसको एक जर्नल की शक्ल देगा। जिस तरह से आप ई न्यूज लेटर्स वगैरह जहाँ कोई ई जर्नल निकालते हैं, इस तरह से ऑटोमेटिकली हम लोगों ने ये जर्नल उसको एक्सट्रैक्ट करके खबरें और उसको पब्लिश करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाए हुए हैं और एक स्टूडेंट ने रेटिना एक्सपर्ट बनाया है। इस तरह से आप लोगों को रोबोटिक्स के बारे में भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी काविशें हैं और तथा को भी मैं सराहना चाहूंगी जिन्होंने काफी स्ट्रगल की है और स्टूडेंट्स को हिदायतें उनकी वक्तन फवक्तन मिलती रहती है और इस तरह से हम लोगों ने ये इंडस AI वीक 2026 जो है उसको सेलिब्रेट किया। थैंक यू। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि आज यहाँ पर एक एक्सपो मनाया जा रहा है जहाँ पर स्टूडेंट ने जो स्किल्स पूरे साल के अंदर उन्होंने सीखे हैं वो यहाँ पर दिखाई जाएंगी कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाए हैं और किस तरह उन्होंने जो अपनी सलाहियतें हैं उनको दिखाया है। जी, अहमदपुर शर्किया में वफाकी मोहतसिब के इदारे की जानिब से अवामी शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरी मुनक्किद की गई जिसकी सदारत असिस्टेंट डायरेक्टर फजल रजा रिजवी ने की। कचहरी में तहसील भर के वफाकी अफसरान ने शिरकत की और साइलीन ने मुख्तलिफ महकमों के खुसूसन मैपको की कारकर्दगी और बिलिंग के हवाले से शिकायत पेश की। असिस्टेंट डायरेक्टर ने अफसरान को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि साइलीन के मसाइल को नज़रअंदाज करने के बजाय फौरी तौर पर हल किया जाए। फजल रजा रिजवी ने वाज़ह किया कि वफाकी मोहतसिब का मकसद अवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना और किसी भी महकमे की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हारूनाबाद में महकमा हेल्थ और पॉपुलेशन के ज़ेर एहतमाम THU सायरा हॉल में माँ बच्चे की सेहत के हवाले से सेमिनार मुनक़िद किया गया। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर राना इमरान, असिस्टेंट डायरेक्टर लियाकत अली, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर अतौर रहमान, THU इंचार्ज डॉक्टर अनवर सुखेरा, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उमर मलिक और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर खालिद ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि माँ बच्चे की हिफाजत के लिए फैमिली प्लानिंग वक्त की अहम ज़रूरत है और फीमेल हेल्थ इंस्पेक्टर्स की टीम घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करेगी। जहाँ किसी फ़र्द को बीमारी लाहक होगी उन्हें हुकूमत की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अद्वियात फराहम की जाएंगी। उलमाए कराम ने भी माँ बच्चे की सेहत और फलाह बहबूद के हवाले से कुरानी आयात का हवाला देते हुए उसे ज़रूरी करार दिया ताकि एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील पा सके। आगे बढ़ें और आपको बताएं, निराला खुल्द के रेडीज पार्क में जारी तज़ीन और आइश और लाइटनिंग के काम के दौरान हिफाजती इक़दामात ना होने से शहरियों की जान खतरे में पड़ गई है। पार्क में मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की तारें ज़मीन पर बिखरी हुई हैं जबकि गटरों के मुतादिद मेन होल्स खुले पड़े हैं जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। पार्क में सैर के लिए आने वाले बच्चों और ख़वातीन शदीद खौफ व हिरास का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि रोज़ाना दर्जनों ख़ानदान पार्क का रुख करते हैं। ऐसे में ये सूरत हाल किसी भी वक्त जानी नुकसान का बाइस बन सकती है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मेन होल्स बंद किए जाएँ, बिजली की तारों को महफूज बनाया जाए और पार्क की सफाई को यकीनी बनाया जाए। शहरियों ने DCO काड़ा से अपील की है कि मामले का फौरी नोटिस लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि किसी बड़े सानहे से कबल हिफाजती इक़दामात मुमकिन बनाए जा सकें। स्कर्दू और गिरदोनवा में मौसम अबर आलूद है और सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा हो गया है। सर्द हवाओं के बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने लगा है जबकि बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मौसम मज़ीद सर्द रहने का इम्कान है। बर्फबारी के बाद बालाई इलाकों में हद निगाह मुतासर होने और पहाड़ी रास्तों पर फिसलन के खदशे के पेश नज़र महकमे मौसमियात ने मुसाफिर को एहतियात और आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी की लहर आइंदा चंद रोज़ तक बरकरार रहने का इम्कान है और रात के औकात में स्कर्दू और मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई की गई है। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीक 2026 का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया जिसका मकसद तलबा की तालीमी, फ़िक्री और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है। स्टूडेंट वीक की तकरीबात 13 फरवरी तक जारी रहेंगी जिनमें फूलों का शो, किताब मेला, इंडोर गेम्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियाँ शामिल हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर यूसुफ खुश ने कहा कि स्टूडेंट वीक का बुनियादी मकसद तलबा को सवाल करना सिखाना और तनकीदी सोच को फ़रोग देना है। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर अल्ताफ़ हुसैन चाचर ने कहा कि ये प्रोग्राम तलबा को सीखने और ख़ुद
کو منوانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر زاہد حسین نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے دور میں غیر نصابی سرگرمیاں طالب علموں کے لیے ضروری ہو گئی ہیں۔ سابق مشیر خزانہ سندھ سید اسد علی شاہ جیلانی نے شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کو سندھ بھر کے لیے مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ 21ویں صدی میں دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور مستقبل مشینوں کا ہے۔ جلال پور پیرووالا سیلاب کو گزرے 5 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج شریف اور جلال پور پیرووالا کو ملانے والا روڈ مرمت نہ کیا جا سکا ہے۔ ہمارے نمائندے فیصل امین غوری اس وقت اوچ شریف روڈ پر موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جلال پور پیروالا کا وہ روڈ جو سیلاب کی نظر ہو گیا تھا۔ یہ روڈ اوچ شریف کے تھرو کراچی سے جلال پور کو ملاتا ہے، جس کو سیلاب کے دنوں میں کٹ لگایا گیا تھا، جو تاحال ابھی تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ میری بیک سائڈ پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر مشکلات سے لوگ آ رہے اور جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ جی، ہمارا ادھر سے روز آنا جانا ہے، یہ روڈ بہت خراب ہو چکا ہے، جو بھاری ٹریفک ہے رات کو ادھر کو پھنس جاتی ہے، ادھر سے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری ریکویسٹ ہے یہ روڈ بنایا جائے، 5 ماہ سے یہ اس طرح چل رہا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہماری کہ یہ روڈ کس طرح ہے۔ جی آپ نے شہری کی بات سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں 5 ماہ سے ہمیں شدید مشکلات ہیں آنے جانے میں، جب ہیوی ٹریفک یہاں سے گزرتی ہے تو وہ پھنس جاتی ہے، جو رات 24 گھنٹے کے لیے یہ روڈ بلاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عوام کی، شہریوں کی گزارش ہے، اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں اور تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو سکے۔ جی جڈو کے علاقے اسلم ٹاؤن میں جامعہ عربیہ طاہریہ میں استقبال رمضان اور جشن دستار فضیلت کے سلسلے میں ایک عظیم الشان اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں قبلہ پیر محمد ایوب جان سرہندی سمیت علماء اکرام اور سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران جڈو کے علاقے اسلم ٹاؤن اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ جامعہ عربیہ طاہریہ میں منعقدہ اس پروقار محفل کی سربراہی علامہ حافظ شہزاد علی اور مفتی تنویر احمد نقشبندی نے کی۔ اس موقع پر تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے پوزیشن ہولڈرز طلباء میں شیلڈز اور انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر ملک اور ملت کی سلامتی اور خیر و برکت کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ ملتان میں صوبہ پنجاب کے تقریری مقابلوں میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے پر 7 سالہ افنان لیاقت کا آبائی علاقے تحصیل شجاع آباد کے اللہ چوک پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ دوسری جماعت کا ہونہار طالب علم 7 سالہ محمد افنان لیاقت نے تقریری مقابلوں میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے شجاع آباد کا نام روشن کر دیا، جبکہ افنان لیاقت نے اپنے سفر کا آغاز صوبائی تقریری مقابلوں سے کیا۔ اس کے علاوہ افنان نے ضلع اور ڈویژن سطح کے تقریری مقابلوں میں بھی اول پوزیشن حاصل کر رکھی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر شہریوں، اساتذہ کرام اور اہل علاقہ نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور مبارکباد پیش کی۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن ضلع ننکانہ صاحب کے سال 2026 کے ضلع انتخابات مکمل ہو گئے ہیں۔ انتخابات میں غلام قادر الوی المعروف JQ الوی کو اکثریت رائے سے ضلعی صدر اور اختر حسین بھٹی کو جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف تحصیلوں سے اسکول سربراہان اور عہدیداران نے شرکت کی، جن میں سانگلہ ہل، شاہکوٹ، ننکانہ صاحب اور منڈی فیض آباد شامل تھے۔ ڈائریکٹر گرو نانک جی اسکول سردار مستان سنگھ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ انتخابات کی نگرانی مرکزی پنجاب کے صدر سید علی عباس نے چیئرمین کے طور پر کی، جبکہ نتائج کا اعلان سرپرست اعلیٰ چودھری محمد یاسین نے کیا۔ مرکزی صدر پنجاب سید علی عباس نے خطاب میں کہا کہ ایسوسی ایشن پرائیویٹ اسکولوں کی فلاح و بہبود اور تعلیمی ترقی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ نو منتخب ضلع صدر JQ الوی نے کہا کہ وہ ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے پرائیویٹ اسکولوں کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے۔ چنیوڑ میں مجلس وحدت المسلمین اور دیگر تنظیموں کی جانب سے اسلام آباد میں ہونے والے افسوسناک سانحے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت سید عنایت علی شاہ، سید عاشق حسین بخاری نے کی۔ ریلی میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔
मजीद बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां मुनव्वर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद इमाम बारगाह में होने वाले अफसोसनाक सानह के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन व दीगर तंजीमों की जानिब से इफ्तिजाजी रैली निकाली गई। रैली पीपल चौक से शुरू होकर ख़त्म नबूवत चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने शुहदा के लवाहकीन से इजहार यकजहती करने के लिए हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर दहशतगर्दी के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका का कहना है जो ये काम करने वाले हैं उनका इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं है, ना वो मुसलमान है ना उनको मुसलमान हम कह सकते हैं, और ये सरासर एक साजिश है कि हम पाकिस्तान की अवाम को फिरका वारियत के हिसाब से इनको तकसीम करेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम और ये मज़ाहिब मुतफ़िक हैं और हुसैनियत को मानने वाले हैं। और लोग जिनके ज़ाहिर शहीद होता है, जिनके घर से अमवात उठती हैं, उनके दिल छलनी होते हैं, लेकिन हमारी इल्तिमास है मिलत तशय्युअ से कि अपने जज्बात पे कंट्रोल करें, अपने जज्बात को अपने काबू में रखें, और इंशाअल्लाह ये जो इंतज़ामिया है, जो मुल्क के लोग हैं, वो इंशाअल्लाह इस चीज़ को बेनकाब करेंगे। और हमारी इल्तिमास और दुआ है परवरदिगार आलम से तो खुदा उन शहदा को शहदा करबला के साथ महशूर फरमाए। ये खुदकश हमला करना सराहतन इस्लाम में क्या है, हराम है। तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक ये हराम है, लिहाजा ऐसे काम पाकिस्तान में हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हमारे जो ज़िम्मेदारान हजरात है इनसे भी गुजारिश करे ऐसे इक़दामात करे जिससे मुल्क अमन का गहवारा बने। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और दीगर तंजीमों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस्लामाबाद में मुलव्वस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दोबारा ऐसा वाक़या रोनमा न हो सके। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ मियां मुनव्वर हुसैन, 5 न्यूज़ चनियोट। खानेवाल में गैर मेयारी खुराक तैयार करने वाली पापड़ फैक्ट्री के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की और 40 किलो गैर मेयारी स्नैक्स, 30 किलो जाली पैकिंग मटेरियल और 20 लीटर खुला ऑयल जब्त कर लिया। फैक्ट्री की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई, जबकि मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी ने कहा कि सेहत बख्श खुराक की फरहमी यकीनी बनाने के लिए सूबे भर में फूड सेफ्टी टीमें गैर मेयारी खुराक बनाने वाले यूनिट्स के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई कर रही हैं। कोट अदू के गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट के बाहर तालिबात ने तालीमी निज़ाम में मौजूद खामियों के खिलाफ एहतजाज किया। तालिबात का कहना है कि कंप्यूटर क्लास के तमाम कीबोर्ड और माउस ख़राब होने की वजह से अमली तरबियत मुमकिन नहीं और इंतज़ामिया के नोटिस के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा। तालिबात ने कहा कि ख़राब आलात की वजह से ना तो प्रैक्टिस मुमकिन है और ना इम्तहानात की तैयारी, और कई बार इंतज़ामिया को आगाह करने के बावजूद मसला हल नहीं हुआ। तालिबात ने मुतालबा किया कि कंप्यूटर लैब फौरी तौर पर फ़ाल की जाए और नए कीबोर्ड और माउस फराहम किए जाएँ ताकि तालीमी वक्त ज़ाया ना हो। नवाबशाह में मुनक्किद कॉन्फ्रेंस में मुखिर हजरात ने दिल खोल कर एहतियात दी, जहां अर्फन केयर प्रोग्राम के तहत यतीम बच्चों की कफालत के लिए 2,37,77,000 रुपए जमा किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं नवाबशाह से शहबाज अली यज़दी की इस रिपोर्ट में। नवाबशाह अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर तमाम आरफन केयर प्रोग्राम की डोनर कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और अल खिदमत फाउंडेशन के मुकर्ररीन ने अल खिदमत की फ़लाही खिदमत पर रोशनी डाली। इस मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान का कहना था कि माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ के मौजूदीन यहाँ पर जमा हुए हैं अपने यतीम बच्चों के लिए, और हमने चैरिटी डिनर रखा था अल खिदमत फाउंडेशन ने, नवाबशाह ने, और उसके अंदर लोगों को जमा किया था ताकि अपने यतीम नवाबशाह के यतीम बच्चों के लिए हम यहाँ फंड रेजिंग कर सकें, और बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया है। भरपूर ताउन जो है नवाबशाह के शहरियों ने किया है। मज़ीद की गुंजाइश है तमाम शहरियों से, नवाबशाह के अहले खैर से, मुखिर अफराद से अपील है कि उस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हम ये 400 बच्चों की कफालत का टारगेट पूरा कर सकें। माशाल्लाह लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया, उन्होंने चैरिटी की, और पिछले के मुकाबले में इस दफ़ा तकरीबन 2,37,37,00,000 और 77,000 रुपये हमारा फंड जमा हुआ। और जिन जिन लोगों ने हमें दिया, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमतें बरसाए। जहां मुखय्यर हजरात की जानिब से करोड़ों रुपए के अतियात आरफन केयर बच्चों की किफ़ालत के लिए दिए, वहीं एक मासूम छोटी बच्ची ने भी अपनी रोज़ाना की खर्ची जमा करके यतीम बच्चों की किफ़ालत के लिए अतिया कर दिए। इस नन्ही बच्ची ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनल फातिमा है और मैं हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैंने यतीम बच्चों के लिए
اپنے غلک میں پیسے جمع کیے تھے اور میں اپنے بابا سے روزانہ پیسے لیتی تھی اور پھر اپنے غلک میں ڈالتی تھی. یتیم بچوں کے لیے میں نے پیسے جمع کیے تھے. وہ غلک میں نے اپنا الخدمت والوں کو دے دیا. الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت ڈونرز کانفرنس میں تقریباً 2,37,77,000 روپے کے عطیات جمع کیے گئے، جو کہ تقریباً 300 سے زائد آرفن یتیم بچوں کی کفالت میں صرف کیے جائیں گے. کیمرہ مین اسامہ رائی کے ساتھ شہباز علی حسدی، چینل 5 نیوز، نوابشاہ. پنجاب حکومت کی جانب سے بسنت کے اعلان کے بعد الحمرا آرٹس کونسل کی جانب سے بسنت فیسٹیول کا اہتمام زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، خواتین اور بچوں نے بھی فیسٹیول میں شرکت کی. فیسٹیول میں کتب اسٹالز، کھانے کے اسٹالز اور میوزک کا اہتمام بھی کیا گیا. دیکھتے ہیں نمائندہ لاہور حماد سعید کی اس رپورٹ میں. پنجاب حکومت کی جانب سے بسنت کے اعلان کے بعد لوگوں نے اس پہ خاصی حیرانی اور دلچسپی کا اظہار کیا اور بسنت کا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. لوگوں نے اس کو بھرپور طریقے سے منایا. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بسنت نہ صرف ان کے لیے خوشیاں لے کے آئی ہے بلکہ حکومت پنجاب کو چاہیے ہر ماہ ایسے کوئی نہ کوئی ایونٹ ضرور منعقد کرے. لوگوں کی اس فرمائش کے فوری بعد الحمرا آرٹ کونسل نے بھی ایک بسنت میلے کا اہتمام کیا جسے بسنت فیسٹیول کا نام دیا گیا. یہ میلہ الحمرا آرٹ کونسل مال روڈ پر لگایا گیا. لوگوں کی بڑی تعداد نے اس میلے میں شرکت کی. یہاں پر لوگوں کی دلچسپی کے لیے الحمرا آرٹ کونسل نے مختلف قسم کے اسٹالز لگائے جن میں کتابوں کے اسٹالز خاصی دلچسپی لے رہے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کتابیں مختلف زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں جن میں دینی بھی ہیں، دنیاوی کتابیں ہیں جن میں مختلف شعبہ جات زندگی موجود ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسی کتب لوگوں کے لیے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. بچوں نے خاص طور پر کتابوں میں خاصی دلچسپی کی. بچوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی دلچسپی کے لیے آرٹیفیشل جیولری کے اسٹال بھی لگائے گئے، جبکہ کھانے پینے کے اسٹالز میں بھی لوگوں نے خاصی دلچسپی کا اظہار کیا. لوگوں کی دلچسپی کو مزید بڑھانے کے لیے الحمرا آرٹ کونسل نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے میوزک کا بھی اہتمام کیا، جہاں پر میوزیشنز نے مختلف قسم کی دھنیں پیش کیں. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دلچسپی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے یہاں پر گل دودی اور مختلف قسم کے پھولوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دلچسپی لیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے اسٹالز نہ صرف لوگوں کے لیے علم کا باعث بنتے ہیں بلکہ حقیقی خوشی بھی لے کے آتے ہیں.